will be joining us shortly as well. In the meantime, we'll start the webinar. So on behalf of the Center of Law and Security, I would like to welcome my esteemed panelists, Mr. Barrister Taimur Malik, Senior Partner of Kalam Law, and Dr. Azizur Rahman, Director, School of Law, Quaid-e-Azam University. I am Zara Shah. I'm the Senior Research Associate for the Center for Law and Security. So today we'll be starting our discussion over our current topic, judiciary versus legislation. Is there a way out? So given the current constitutional crisis underway, judicial independence is vital in the maintenance of the law and to democracy. The principle of judicial independence requires the protection of the environment within the judges to operate so that they're immunized against direct political interference, whilst also observing that Parliament does have a legitimate interest in the substance of law and efficient and effective operation of the court system. In Pakistan, there has been concerns that the judiciary has overstepped its bound by taking so much cognizance of matters that should be handled by the executive or legislative branches of the government. This has led to the perception that the judiciary is using its power to further its own agenda rather than to serve the interests of the justice. In Pakistan, the power of suo motu cognizance is vested under judiciary under Article 184, subsection 3 of the Pakistani Constitution. This power is typically used by the courts to address matters of public importance or to address an injustice where there is no other legal remedy available. Keeping this in mind, I would like to start the discussion with Barrister Taimur Malik. Recently, an 8-member larger bench court has recently ordered that even if the Supreme Court Practice and Procedures Bill 2023 received the assent from the President, the bill would not be acted upon in any manner till further notice. Do you see the principle of separation of powers losing equilibrium in Pakistan's case? I think it's a very difficult situation in which both the Parliament and the Supreme Court find themselves. The separation of powers of the institutions is very important for Pakistan as a country and also for these two institutions. कल एक पार्लियामान के मेंबर कमेंट कर रहे थे कि जी फिर पार्लियामेंट में जाने की क्या ज़रूरत है अगर हम कानून साजी नहीं कर सकते, इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही सारी पावर्स दे दें. On the other hand, there have been friends who've been very vocal and have said कि जी 8 member हैं सुप्रीम कोर्ट के, so which is the majority of the Supreme Court. If they sit and decide something unanimously, then that has to be respected as well. और जो डिबेट इस बिल से मुतालिक है वो उसमें जो कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि हम I think the most part of the legal community, they are for reform of the Chief Justice's powers. They are for curtailment of certain powers and also for making it less of a less of an important role for the Chief Justice and making it a more institutional role. लेकिन उसके अंदर जो टाइमिंग है, मोड है, जो मेथड है, जो जिस तरीके से ये बिल और जिस तनाजुर में जिस टाइम पे पेश किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं. और क्या जो पावर्स जो होनी चाहिए, अगर 3 लोगों की होनी चाहिए, इफ इट्स अ रिवॉल्विंग कमेटी विद समथिंग एल्स, उसके ऊपर डिबेट हुई कि नहीं हुई? बिकॉज ऑब्वियसली इस ड्राफ्ट के ऊपर, इस बिल के ऊपर तो कोई डिबेट नहीं हुई. सो कोई कंसल्टेशंस हुई बार काउंसिल्स के साथ या वो भी नहीं हुई, फॉर्मर जजेस या चीफ जस्टिस के साथ वो भी नहीं हुई. तो ये इशू है. बट ऑब्वियसली द ऑर्डर ऑफ yesterday has also come under criticism, and I think it's a right of the legal community and other judiciary watchers to comment and to criticize, to share their viewpoint. But I look forward to hearing what others have to say, and then we'll add. Dr. Saab, I would like to ask you that, in your opinion, would you agree that the proposal to amend the rules of Supreme Court should be the job of the apex court itself? या ये होना चाहिए पार्लियामेंट के पास, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजंस ये वाले खुद ले सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you very much. And I think this is a very important question, and especially in terms of time when we are discussing this. So right now, whatever is happening in the parliament and at the same time in the Supreme Court of Pakistan, so this really deserves that we should sit down and we should reflect on that and we should discuss this issue.
एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे अभी बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे, आई पर्सनली थिंक कि ये इस वक्त जो राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रपोज्ड एक लेजिस्लेशन के हवाले से केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, इसका जाहिर बात है एक कॉन्टेक्स्ट है, और ये डिबेट गो के इमीडिएटली इस प्रपोज्ड बिल की वजह से स्टार्ट हुई है। मगर सो मोटो पावर्स की एक्सरसाइज और बेंचेस की तश्कील के हवाले से ये डिबेट पाकिस्तान में नई नहीं है, और पिछले कुछ अरसे से तसलसल के साथ इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और ये गुफ्तगू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर या लॉयर्स या पार्लियामेंटेरियंस नहीं कर रहे या पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके हवाले से बाज़ गश्त सुनाई देती है। और ये सिर्फ इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स की बात नहीं है, माजी में भी, माजी करीब में भी हम देखते हैं, खासतौर पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो एक जुडिशल एक्टिविज्म था, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो है गाए गाए इस हवाले से गुफ्तगू और बातचीत होती रही है कि फैसले करने और केसों की समाअत और बेंचों की तश्कील और इवन प्रायोरिटीज तय करने के हवाले से जो एक इंतजामी पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को कोई कलेक्टिव विजडम के साथ इन मामला को देखने की जरूरत है कि या इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट जो है एक चीफ जस्टिस की सूरत में इसको एक इंतजामी मामले के तौर पर देखती है। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने भी लॉन्ग टर्म एक एज ए इंस्टीट्यूशन ये उसके इंटरेस्ट में है कि दीज काइंड ऑफ मैटर्स शुड बी डिस्कस्ड, और इसके हवाले से एक मैकेनिज्म तय करने की जरूरत है। ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि जो इस वक्त लेजिस्लेशन आई है उसका एक खास तरह का एक तनाजुर है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इस तरह की तमाम लेजिस्लेशन का पाकिस्तान में हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट और एक तनाजुर होता है। Unfortunately, we have institutions like Law and Justice Commission of Pakistan and a number of other formal and informal institutions, but we don't actually do a routine kind of legal reforms, और जो legislative reforms का जो process है वो हम करते नहीं। जब हम वो नहीं करते और जब situations ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, तो फिर हम फौरी तौर पर उन situations को रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसकी वजह से फिर एक पॉलिटिकल डायमेंशन बड़ा वाजे हो जाता है, और उसकी वजह से ये चीज जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। अच्छा तैमूर साहब, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं क्योंकि जब इस पे अभी हमारी बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, और आपको पता है मीडिया के अंदर भी जो है वो डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा जो वो इस पे थी, तो टाइमिंग की बात क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी की, आपने भी की, और पाकिस्तान में वो कहते हैं वो टाइमिंग तो कभी भी ठीक नहीं हुई किसी काम के लिए। तो दिस डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी फॉर क्वाइट अ वाइल एक्चुअली। बार रूम्स के अंदर तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन थी, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी 184 जो है वो और जजेस के एलिवेशन के मामला जो है वो आते रहे। बट गवर्नमेंट का इस पे जो आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम 184 को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि हम उसके सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका प्रोसेस है 184 का, हम उसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब ये स्टांस लेती है तो डू यू थिंक दे आर जस्टिफाइड इन सेइंग के क्योंकि ये एक प्रोसीजरल मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिस पे जो है वो हमारी डोमेन के अंदर जो है वो आता है, एंड देन वी कैन डू दैट। हाउ डू यू सी गवर्नमेंट की पोजीशनिंग इन दिस? नहीं, देखें, एज फार एज द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज कंसर्न्ड, जिस तरह पहले भी बात हुई, मेरा तो व्यू यही है कि इंस्टीट्यूशन को अपने ये खुद अमेंड करने चाहिए। और पिछले कई चीफ जस्टिस ने ये बात की थी, ये अफसोसनाक है कि उन्होंने इसके ऊपर चेंज नहीं किया। मेरे ख्याल में अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके साथ जो भी करे, बट बंदयाल साहब को अपने होते हुए एज चीफ जस्टिस इसको अमेंड करा के जाना चाहिए। ये अगले चीफ जस्टिस पे चीज नहीं छोड़नी चाहिए। सो तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिबेट किस चीज पे नहीं हुई कि क्या 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं एट एनी टाइम वो इसके ऊपर बेंच बनाएंगे या फैसला करेंगे कि सो मोटो पावर ली जा सकती है कि नहीं। आज जो अभी 8 मेंबर बेंच बना है उस पर बहुत इख्तलाफ कई लोगों का ये आया है कि जी 2 सूबों के जज इसमें शामिल नहीं है। अगर हमने फिर उस तरह चलना है तो क्यों ये पावर्स जो हैं एक्सरसाइज करने के लिए, देखें सुमोटो किस तरह मेनली किस चीजों में एक्सरसाइज हो रहा है, मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो फिर आप चारों सूबों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्लस चीफ जस्टिस के कमेटी क्यों नहीं बना देते? मतलब देर आर फिर जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाएगी कि कोई खातून एक ही सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, आप उनको इसमें शामिल ही ना करें। हमारे बड़े विमेन राइट्स और जेंडर सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर डिबेट आ सकती है, तो क्या कोई एक फीमेल मेंबर होना इस कमेटी का जरूरी है? दीज आर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड एंड लेजिटिमेटली सो। बट कल में असल कोर्ट में को ऑर्डर जो debate कल कोर्ट ने तैमूर साहब जो इंटरम ऑर्डर दिया है उसके अंदर कोर्ट ने ये लिखा है कि क्योंकि ये जुडिशरी अदलिया की जो आजादी है और अदलिया के जो इख्तियारात हैं
उन्होंने कहा कि हाइंडसाइट में ये लगता है कि उसके लिए जो है ये कानून साजी जो है वो हो रही है। बट ये लाइन हम लॉ में लीगली अगर हम बात करें, ये थोड़ी सी जरा आप थोड़ी हमें गाइड करें कि लीगली ये लाइन हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर क्या है और एक बुनियादी हकूक का जो मामला है, जिस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो मामला जो है वो क्या है जिस पर कल कोर्ट ने जो है वो ये इंटरिम स्टे जो है वो दे दिया। और उसमें भी मैं देखें, एक तो बात यह है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है कि किन मामलात पे कानून साजी पार्लियामान कर सकता है, उसमें एक चीज है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं कर सकते। अब पार्लियामान क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड? पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ा सकता है, शायद कम भी कर सकता होगा, ठीक है, आइन की अमेंडमेंट करके। बट द क्वेश्चन इज नॉट कि यहाँ पे आप वो चीजें अमेंड कर रहे हैं कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस क्या होगा, उन चीजों पे तो पार्लियामान इंटरफेयर कर सकता है। बट जहाँ ये बात आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली चलना कैसे है, उसके ऊपर भी पार्लियामेंट जो है वो रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग खुद कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद करना है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लीगल कम्युनिटी फील्स कि ये जो एस्पेक्ट है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन पावर्स जनरली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द लॉ, ये वाला काम, ये बेंचेस की फॉर्मेशन वगैरह वाला एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, जो नॉर्मली चीफ जस्टिस और साथ रजिस्ट्रार एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द ऑफ द कोर्ट वो करते हैं। तो वहां पे आप करें। कल को फिर अगर इसकी इजाजत दे देंगे तो कल को कोई पार्लियामान आके वो ये कहेगा कि जी सिर्फ जिस सूबे की अपील्स हों उस सूबे के सुप्रीम कोर्ट के जज वहां की सुन सकते हैं बात, या नहीं सुन सकते हैं, या वो कोई बात करते हैं कि जी जिसके पॉलिटिकल पास, पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो है वो गवर्नमेंट्स की, ये तो वो क्या वो वो शुरू हो उसके जाएगी, लिए वो ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो। वो शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप उसको रोकेंगे कहाँ? अगर आप बेंच फॉर्मेशन टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की पावर्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी पार्लियामान को दे देंगे, तो वेयर विल दिस स्टॉप? अभी भी बिल के साथ प्रॉब्लम और भी है। बिल देखें, हम इसको सिर्फ आइसोलेशन में इस पे नहीं पढ़ सकते कि जी ये 3 मेंबर कमेटी करेगी, बट इसमें आगे और भी बातें हैं। इसमें यह भी है कि रेट्रोस्पेक्टिव राइट ऑफ अपील भी दे दिया है, जिनके आज तक सुमोटो के अंदर कोई फैसले हुए हैं कि वो जाके इसमें अपील कर सके। उसमें ठीक है, जेन्युइन मैटर्स भी होंगे, कई हमारे दोस्त भी बेनिफिट राइट। लेंगे, लेकिन वकीलों का को काम मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये दरवाजा खोला जा सकता है, और वो भी पार्लियामेंट के थ्रू? तो आई थिंक राइट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सब ये चीजों बिल्कुल को उसी तरह से जिस तरह देखें। से इफ आई होप देखने वाले एंड एवरीबॉडी रिमेम्बर्स, एक्चुअली वो बहुत पुरानी बात नहीं है, एनआरओ जिस तरह से दिया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही एनआरओ जो है वो उसको स्ट्राइक डाउन किया। तो वो इससे बहुत लंबी चौड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो गई थी, विच वी विटनेस इन डिबेट इन मीडिया, और जो है वो लॉ में भी, जूरिस्प्रूडेंस में भी। लेकिन आपकी बात थी वकीलों का काम फिर चला, क्योंकि केसेस बैक एंड फोर्थ जो है वो आते रहे। नहीं, लेकिन ये डॉक्टर साहब का भी बिल्कुल व्यू इस पे लेते हैं जी, बट हाँ मेरे सही ख्याल में तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉ के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अंदिया ये दिया है कि पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ के ऑप्शन है, और ये पर्सन और सिचुएशन स्पेसिफिक ये किया जा रहा है। क्या ये पार्लियामान ये भी बिल पास कर देगी कि जो अभी लेजिस्लेशन चल रही है, जो रिसेंट इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं, उसके ऊपर अपील का राइट नहीं आएगा? या जो हुकूमती जो पीडीएम की जमातें हैं, उनके जो सरबराहान हैं वो इसके अंदर बेनिफिट नहीं राइट। लेंगे राइट ऑफ अपील का? मतलब अगर अगर आपने शो करनी है गुड फेथ, तो फिर ऐसी चीजें भी डाल दें। ये मैं कहूंगा, जी बट आगे डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो क्या ख्याल है। जी जी, मेरा इस हवाले से देखें, ये दो पॉइंट्स जो आपने उठाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो इस वक्त हो रहा है उसको भी अगर हम थोड़े से कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, इस वक्त तो राइट नाउ हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस और बेंचेस की कंपोजिशन के हवाले से जो रेगुलेट करने की बात हो रही है या कोशिश हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में बजाय एक रद्द अमल आ रहा है कि ये आप शायद हमारी डोमेन में आ रहा है। लेकिन माजी में देखें, अभी एक आपने बात करते हुए जिक्र किया कि जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अमेंडमेंट, पार्लियामेंट ने 18 अमेंडमेंट में एक मैकेनिज्म तय करने की कोशिश की, लेकिन इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलिफाई कर और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं कर।
अब ये जाहिर बात है कि ये एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट और फिर पार्लियामेंट के दरमियान एक चीजें चलती रही हैं, और अब आके फिर एक तरफ से रद्द अमल भी होता है, दूसरी तरफ से फिर एक अमल भी होता है। तो उसमें जब तक हम उस कॉन्टेक्स्ट में चीज को नहीं देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम पूरी तरह अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इस वक्त राइट नाउ ये जो एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई है ये क्यों है, और इसमें ये सिर्फ एक बाइनरी पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसकी एक अच्छा, ओवरऑल जाहिर बात है कि एक सियासी माहौल डॉक्टर साहब, इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, और वो ये कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसका पहले आपने भी हवाला दिया, तैमूर साहब ने भी बात की, उसकी लाइंस हम कहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की भी जो जुडिशियल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये नया नहीं है। वी हैव सीन मेनी एपिसोड्स, हम बहुत सारी एपिसोड जो है वो देख चुके हैं। सेकेंडली फिर ये चीज सिर्फ पाकिस्तान तक भी नहीं है, ये चीज यूएस के अंदर जहां पर एफडीआर ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, और वहां पे तो बड़ा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बड़ा वो रिलीजियसली जो है वो उसको फॉलो किया जाता है। तो उसने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शुरू किया अपना रिफॉर्म प्रोग्राम, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें स्ट्राइक डाउन कर दी, और उसके बाद जो है वो उसकी जजेस के साथ एक जो है वो लंबी जो है वो लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें उसने कहा था कि आई विल सेंड द कोर्ट पैकिंग। फिर और भी बहुत सारे मुल्कों में हमने ये देखा है इशू। सो बट ये क्लियरली डिफाइंड लाइन हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल टू हैव क्लियरली डिफाइंड लाइन, या फिर ये डोमेन्स ऐसी हैं और ये कार्य सरकार ऐसा है कि ये चीज कहीं ना कहीं ओवरलैप जो है वो करती रहेगी और आती रहेगी इस तरह से इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, और उन कॉन्फ्लिक्ट का वे आउट क्या होता है? जी देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें सिचुएशन ऐसी ही है कि अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस के मुताबिक जाएं तो बज़ाहिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी पे ये जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे पाकिस्तान में क्या करना है। लेकिन देन कम्स हार्ड केसेस और बड़े मुश्किल किस्म के केसेस आ जाते हैं, जिनकी नोयत एक तरफ पॉलिटिकल होती है, दूसरी तरफ उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीगल डायमेंशन होते हैं। और वहां पर आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, जैसे यूएस में होता रहा माजी में। अगर हम ये देखें, इवन अगर आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में इंदिरा गांधी के दौर में जो इमरजेंसी पावर्स को लेकर और फिर बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन जिस तरह इवॉल्व हुआ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इवॉल्व किया, तो उसकी भी बुनियादी तौर पे वजूहात तो यही थी और इसी किस्म के मामला थे। मैं लास्ट वीक ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था कि कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और उसका टाइटल कुछ इस तरह का दिया, द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी नलीफाई कर सकती है या स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो उसको पढ़ के मैं सोच रहा था और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी कि perhaps it is not the Canadian Supreme Court which is the most powerful. Arthur should know that there is a Supreme Court in Pakistan जो इससे बढ़कर भी चीजें कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के अख्तियारात भी तफवीज कर सकती है। तो ये जाहिर बात है क्योंकि पॉलिटिकल मामलात हैं, और इन पॉलिटिकल मामलात में जब इस तो गोइंग बैक टू द थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे आप इसको लेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपने इसको कहा, मैं इसको इस तरह भी देखता हूं कि ये पाकिस्तान में ना एक ऑन गोइंग काइंड ऑफ टेंशन है बिटवीन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। टिल्ट हमारा जो है वो खासा पॉलिटिकल मामलात में लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ हो गया, और यके बाद दीगरे हमने देखा है कि अदालत ने जिस तरह अपने आप को असर्ट किया है, और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक गुंजाइश कम होती गई है। और जब भी हमारे पॉलिटिशियंस अपने रोल को असर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो रद्द अमल में होता है, और जाहिर बात है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, और वो इमीडिएटली अपने मफादात इतने वाजे तौर पर उसमें नजर आते हैं कि उसकी लिजिटिमेसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा। सर जी जी जी, नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि रहमान साहब की बात पे कि देखें लाइन ड्रॉ करना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी मुश्किल है कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी, और इवेंचुअली जब कुछ स्पेसिफिक इशू आता है तो उस पर एजुडिकेशन ही करनी पड़ती है। तो इधर भी ये चैलेंजेस हैं जी, बिल्कुल है, बट प्लीज जरा गो अहेड। So I was just about to ask कि in your opinion would you agree कि जो हमारा procedure bill आ रहा है तो उस हिसाब से it's because it's currently just the Chief Justice's prerogative to take suo motu cases, would you say that this proposal is just about expanding the role of other judges as representatives of Supreme Court? कल सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये कहा कि आप चीफ जस्टिस को अब 3 ओहदों में बांटने जा रहे हैं थ्रू दिस कमेटी। सो कोर्ट का तो ये व्यू है कि आप चीफ एक ही हो सकता है, आप उसको 3 कैसे बना रहे हैं।
सो बट मैं ये हम्म कहूँगा कि देखें, हमने ये देखा है, अगर हम अपनी जुडिशियल हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि जो भी चीफ जस्टिस बनता है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, उनका जो तरीक़ाकार है वो चीफ बनने के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है फ्रॉम दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कह लें कि right. जी ऑल जजेस आर इक्वल, द रियलिटी इज कि द चीफ जस्टिस इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स विद अ लॉट मोर पावर्स। तो वो कुछ हद तक तो हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में सिर्फ इस चीज़ पे नहीं, मैं आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ आल्सो अ फिक्स्ड टर्म फॉर द चीफ जस्टिस। ना हमें 6 महीने का चीफ जस्टिस चाहिए, ना 13 साल का चाहिए। आप वो भी 2 या 3 साल के लिए एक फिक्स टर्म बना दें, और अगर किसी की रिटायरमेंट एज उसके बाद भी रहती है तो वो वापस आके एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काम करे। आपको कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, जिस तरह आप चलें सीनियरिटी बेस्ड प्रिंसिपल पे तो चीफ जस्टिस तक आ गए हैं, आपको बाकी चीज़ पे भी करना पड़ेगा। आई थिंक ओवरऑल most of us are for regulating the powers of the chief justice of the supreme court as well as of the high court, but it cannot be seen or done in a very particular context and club with so many other things which are manifestly politically motivated at the moment. तो ये कंसर्न है। right. और मैं फिर ये कहूंगा कि ये रेगुलेशन जल्दी होनी चाहिए, बंदयाल साहब ही करके जाएं। इसके बाद ये आगे के लिए नहीं right. छोड़ना, ये वरना तो कभी नहीं होगा। लेकिन तैमूर साहब देखिए, ये मौका पाकिस्तान में सजाद अली शाह के पास भी था, जब वो एलिवेशन के मामलात, आपको पता है उस वक्त जो है वो इनको कर सकते थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल पर जाना है या किसी और प्रिंसिपल पर जाना है, ये उस वक्त भी तय हो सकता था। बट यू आर राइट कि व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो यू डोंट वांट टू रेगुलेट योरसेल्फ। आप उस वक्त अपने आप को जो है वो रेगुलेट जो है वो नहीं करना चाहते। मैं एक और चीज जो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, वो इस कॉन्फ्लिक्ट का, ये जो हम अभी इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, अब इसमें अब आपको क्या लगता है कि ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और पॉलिटिकल मैटर्स खास तौर पर, कि जिनके अंदर जो है वो कोई भी एक फरीक जो है वो पीछे हटने को जो है वो तैयार नहीं है? क्या इस पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर हम किसी भी तरह की जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं, या फिर जो है वो आपको लगता है कि ये अब तैमूर साहब का तो ये है कि प्रपोजल है कि ये काम जुडिशरी को करना चाहिए, बट पॉलिटिशियंस कहते हैं कि पार्लियामेंट, ये तो लॉ मेकिंग तो जो है हमारी डोमेन है। सो डू यू थिंक कि इसका कभी भी वक्त आ सकता है या इस मौके पर हो सकती है? जी, मैं तैमूर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि पार्लियामेंट जो कुछ भी करेगी या पॉलिटिशियंस जो भी करने की कोशिश करेंगे, वो जाहिर बात है कि एक सियासी अमल के तौर पे देखा जाएगा, और उसको उसके मेरिट पर, अगर उसका कोई मेरिट हो भी, तो उसको नहीं लिया जाएगा। ये एक मौका बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने पास है, जैसे तैमूर साहब फरमा रहे हैं, और जस्टिस चीफ बंदयाल साहब और उनके जो साथी जजेस हैं, अगर वो इस बारे में लीड लें और वो इसके बारे में एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि वो इस सेपरेशन ऑफ पावर के डोमेन में पार्लियामेंट को तो मुदाखलत करने का हक नहीं दे रहे, मगर एट द सेम टाइम इसकी जरूरत को महसूस कर रहे हैं, और एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करें जिस प्रोसेस के नतीजे में बहरहाल इस तरह की जो डिस्क्रिशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको किसी न किसी हद तक स्ट्रीमलाइन किया जाए या किसी फ्रेमवर्क में लाया जाए। तो उसके नतीजे में जाहिर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद ये एक जो इतना टेम्परेचर हमारे यहाँ और इतनी हिद्दत बढ़ गई है, ये कम होने की कोई तवक्को है। ये मुझे वाहिद एक सूरत नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट खुद प्रोएक्टिव होके, जिसके मुझे प्रैक्टिकली चांसेस कम नजर आते हैं, लेकिन तरीका कार मुझे लगता है कि वाहिद यही है। मैं तैमूर साहब और एक और चीज की थोड़ी जरा उसको क्लैरिफाई कीजिएगा। गवर्नमेंट जब ये कहती है और लेजिस्लेचर, क्योंकि ये हमने जो करारदादें देखी हैं और तकरीरें देखी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनमें उनका ये है कि जुडिशरी के ऊपर कोई चेक नहीं है। क्या ये बात पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहना दुरुस्त है आपकी नजर में कि पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर कोई चेक नहीं है? जुडिशरी के ऊपर मैं और आप चेक हैं जी, डॉक्टर साहब चेक हैं। हम सारा दिन जुडिशरी के ऊपर एक किस्म का एजुकेटेड क्रिटिसिज्म जो है या फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, और वो शायद सुनते भी हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स और इवेंट्स होते हैं। सो चेक तो जुडिशरी पे किसी भी मुल्क में यही हो सकता है कि दे कि उनको हिस्ट्री कैसे जज करेगी। Judges will not come on webinars or events to defend themselves.
या और टू क्रिटिसाइज ईच अदर, वो तो जजमेंट्स के थ्रू बोलेंगे। सो चेक पूरी दुनिया में ही जहाँ एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ऐसे ही है। अब आप मीडिया की तरह इस पे कैमरा तो नहीं बना के एक बिठा सकते जजेस के ऊपर। राइट, सो रेगुलेट तो फिर तो इसको कुछ करें। रेगुलेट तो नहीं हो सकती ना जुडिशरी आपकी, वो तो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर जहां हम पार्लियामान की बात करते हैं ना, टाइमिंग वाइज आई थिंक इलेक्शन की अगर पार्लियामेंट ने भी कुछ बाकी चीजों पे भी करनी है, जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूरे के जजेस की तादाद पे, या पर्क्स प्रिविलेजेस, या जो भी और बातें, तो वो भी एक नया पार्लियामान विद द मैंडेट ऑफ द पब्लिक आके कर सकता है। अभी आपके इस वक्त पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है। आपकी ये जो करारदादें और जो बिल्स पास हो रहे हैं, आप उनके नंबर्स ले लें, ये एक्चुअल मेजोरिटी, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो वो एक लेजिटिमेसी जो है वो भी है कि आपके इस वक्त हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि इतने दर्जन या 100 के करीब मेंबर्स वापस पार्लियामेंट में आए। स्पीकर अभी उनको वापसी का नोटिफिकेशन ही नहीं इशू कर रहे। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस हैं। तो उस सब तनाजुर के अंदर आई थिंक आप इतना क्रिटिकल इम्पोर्टेंट एक और इंस्टीट्यूशन की पावर्स के ऊपर आप एक बिल पास करें, तो ऑब्वियसली it is more than just the text of that bill that is in question at the moment. Right. Sir, keeping all of this in mind and the current climate in mind, क्योंकि इतनी friction हो रही है between the legislation and judiciary, in your opinion, how do you think it will unfold in the future? Because referring to Pakistan's history, like, do you think anyone will step back, or कुछ क्या हो सकता है? How do you see this all, as like unfold in the future? देखें The जी, majority माजी में has तो to please जी सॉरी डॉक्टर साहब आप बात जी करें। जी माजी में तो इस तरह की जब भी सिचुएशन में हम गिरफ्तार होते थे और एक डेडलॉक की सिचुएशन अगर मुकन्नना और अदलिया के दरमियान पैदा होती थी, तो पाकिस्तान में एक हिडन हैंड और पाकिस्तान में एक ऐसा अंपायर वजूद में था कि जो फिर बिसल बजाता था और उसके बाद या तो रीस्टार्ट का बटन दबाया जाता था या फिर किसी न किसी सूरत में मामले को किसी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाता था। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई हुई है, और वो अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है कि ये एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ही था, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है वो जो एक तीसरी कुव्वत या उस डायमेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी भी जाहिर बात है कि अपनी लिमिटेशन है, और इस वक्त की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर वो भी एक पूरी तरह एक फरीक के तौर पर दीवार के साथ ही लगे हुए। तो बजाहिर तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में एक होप की सूरत पैदा करना मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम लगता ये है कि इस कन्फ्लिक्ट से एक आर्टिफिशियल हल के बजाय हम एक ऐसे हल की तरफ जाने की तवक्को है, चाहे वो टकराव की सूरत में ही क्यों ना पैदा हो, जो फिर एक नेचुरल हल होगा और जिसके नतीजे में फिर हम कुछ स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। और वो ऐसा हल नहीं होगा कि चलें जी 2 कदम आप भी पीछे हट जाएं और मसलहत के तहत 2 कदम आप भी पीछे हट जाएं, आप सब घर चले जाएं और हम दोबारा से एक सेटअप बनाते हैं और वो जो सीरियस इंस्टीट्यूशनल नोयत के इश्यूज हैं उन पर फिर डिबेट ना हो और उनका कोई हल ना निकाला जाए। देखें, to add to this, the majority has to prevail, whichever side the majority is on. I'm talking about the Supreme Court. और obviously वो majority over a period of next few months change भी हो सकती है, किस तरफ की होगी। So I think एक तो चीज़ ये है कि अगर इसी तरह इंस्टीट्यूशन चलती है, आपने जो चीज़ करनी है वो करनी है कि आपने अदालती अहकामात की पासदारी करनी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करनी है, अदरवाइज तो फिर ब्रेक डाउन है। सो जो मेजोरिटी का डिसीजन है उसके ऊपर आप चलें और उसके ऊपर आगे करें। एंड विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये चीफ जस्टिस के पास एक बड़ा मौका है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सेल्फ रेगुलेशन कर दें खुद। अगर पार्लियामान को रोकते हैं तो अभी फिर साबित करें कि इन द लॉन्ग रन आप लोग इस फेवर में हैं और आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ये रेगुलेट होना चाहिए। तो हम रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, हम उसके तरीक़ेकार के खिलाफ। टू कंक्लूड दिस 184 का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, आर्टिकल 184 का? वो मेरे ख्याल में रहेगा जी। 184 की पाकिस्तान जैसे मुल्क को अच्छा। जरूरत भी है और वो चलता भी रहेगा मामला। वो किस तरह यूज होता है उसके ऊपर मजीद आई थिंक रूल्स और रेगुलेशन जरूर बनेंगे, होपफुली जुडिशरी की तरफ से बनेंगे कि तरीकाकार क्या होता है। बट ये सो मोटो पावर्स खत्म मेरा नहीं ख्याल के होंगी पाकिस्तान। अच्छा।
So do you think, with all of this keeping in mind, matlab, is this like a greater process of evolution of democracy for Pakistan, like moving forward? सबके सामने I है जी। believe जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा जी। ये अवाम के सामने है, सब देख रहे हैं सारे इदारे अपने साथ क्या कर रहे हैं। Yes. Right. तो मेरा ख्याल है, I think that really good to hear from you, तैमूर साहब और डॉक्टर साहब, very nice conversation, और थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंडिंग इशू की जो है वो बढ़ती है, और वो इसीलिए जो है पाकिस्तान में लीगल मैटर्स पे वैसे तो डिबेट कम होती है, लेकिन वो लाइक वी से कि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब बहुत सारी चीजों के ऊपर बड़ी ओपनली जो है वो चीजें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, ना सिर्फ हमारी सियासत के अंदर बल्कि मीडिया के अंदर भी। तो आजकल आई थिंक वन ऑफ दोज टाइम्स कि जब चीजें बड़ी खुल के डिस्कस हो रही हैं। सो थैंक यू वंस अगेन तैमूर साहब और डॉक्टर अजीज साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। thank you very much जी, thank you Thank you Thank for you. inviting us जी, it was a pleasure, thank you जी, हाफिज़।